Be on that center right now, okay? Mahatma Gandhi, that so you already posted there or what? Yes, sir. Yes, sir. Sir, now Mhm. it is the time. I think we should start the program. Yeah, please, ma'am. Go Okay. ahead. So, good afternoon, everyone present here. People are joining. Still, many people are joining. They'll keep joining. So let us begin our program. Good afternoon, everyone present here today on 25th June 2021, Friday, in the webinar titled Role of Higher Education and Psychosocial Counseling and COVID Helper Skills. I welcome Team SGVU in today's meeting where we will be discussing an important issue about COVID-19. It has been predicted that the third wave is about to come. It's coming. It's approaching. It has been predicted. And it is also predicted that if we take proper precautions, if we take proper care, then it may not going to happen. It may not come. But still, we have to prepare ourselves and our students so that they can take care of their loved ones and they can also contribute as a helper in eradicating or helping others in eradicating this disease also. And so in this meeting it is all about that preparation, and I request Principal GV said Dr. Rashid Hussain to welcome our guest, who is the representative of Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, MGNRE, Department of Higher Education, Government of India. So now I invite Dr. Rashid Hussain for the welcome address. Sir, please. Yeah, thank you, Ruchi ma'am. So I want to say before we start, I just want to welcome Dr. Vishal Agrawat. He's a research scholar and working in the Department of Farm Machinery and Power Engineering, Anand Agriculture University, Gujarat, and he's working on some of the very interesting projects like electric machinery and for crop harvesting. He's basically expert in agriculture engineering, and he authors 3 books and having multiple international publications. So today he's going to interact with us because he is already part of Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, which comes under HRD Ministry. And dear students and my colleagues and all the seniors, we all are going through the second phase of pandemic, and definitely people are doctors and some other sources are already predicting for the third wave. So in this third wave, before this third wave, government of India and those facilitating departments and all the peoples who are involved to facilitate or to save our potential population and all. So they are working hard, okay, and they are educating basically. So today's session, our intention is to educate all the students, all the faculty members, so that we can go to the lowest level of our population. So and the purpose is definitely is clear, okay, how to face pandemic, okay, being and what is the role of basically institutions, higher education's role, okay, because we can play very important role, okay. So definitely all these things will be discussed, and it will be a question answer session. Students and our faculty dignitaries can ask some questions also from the Vishal sir, because he is actively involved in this project. Basically, he is from Gujarat. So with these all words, once again, I am really doing warm welcome to Dr. Vishal sir, and you please start with okay. Now you can start your session. Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद सर डॉक्टर राशिद हुसैन धन्यवाद एंड डॉक्टर रुचि दवे मैडम, आप दोनों का धन्यवाद। और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी का भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MGNCRE के ओर से धन्यवाद करता हूँ कि
शॉर्ट नोटिस में हम सब यहाँ मिल पाए। तो आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। हम कुछ बातचीत शेयर करेंगे, बाकी तो फिर मैं रुचि मैडम को ही बोल देता, तो जो कोविड वॉलंटियर सेल आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में खोला जाने वाला है वो खुल जाता। पर एक आपका भी विचार जानने के लिए, और मुझे जो पता है, हमने जो जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो आप अच्छे से इंटरेक्ट करिए और एज अ वेबिनार इसे ना ले, ये एक मेरी छोटी विनती रहेगी। और आप सभी अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं अगर कोई नेटवर्क इश्यू या फिर आप कोई ज्यादा अनसिक्योर प्लेस पर ना हो तो हम दो विषय पर चर्चा करेंगे कि एक तो अभी जो ये समय है, अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमारे होने चाहिए, और दूसरा ये कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम उसमें हमारा योगदान कैसे दे सके। हमारा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, कि ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं, एक तो मास मीडिया इंडस्ट्रीज और एजुकेशन इंडस्ट्री, कि अगर आपने वहां पर इंफॉर्मेशन डाल दी तो फिर घर घर तक वो पहुंच जाती है। और अभी सेकंड वेव चल रही थी तो मीडिया का तो हमने अच्छे से देख लिया कि वो लोग क्या क्या हमें दिखाते रहे हैं। पॉजिटिव से ज्यादा ऐसा एक दौर आया कि नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो हमारी भी काफी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई हम इस सिचुएशन में जो देश हमारा ये गुजर रहा है तो हमें उसे कैसे बाहर निकाले। ये आप कोई भी तरीके से इसे ले सकते हैं। अगर हम कहें कि ये देशभक्ति दिखाने का भी इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। 15 अगस्त को हम अपने ये स्टेटस वगैरह रख देते हैं, तो उससे अच्छा अभी जो ये काम करने का समय है, तो इसका हम सब अपने अपने स्तर पर उपयोग करें और हमारे आसपास के लोगों, हमारे फैमिली मेंबर्स, देशवासियों की सेवा में हम जो भी कर सके वो हम करेंगे। ये एक मैं आप लोगों से ये चाहूंगा। और जो ये कार्यक्रम है तो हमारा मोटो यही है कि ईच वन रीच वन। हम एक, अगर किसी एक के भी काम आ सके तो भी ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव केसेस जो ये पीक था तभी भी 2 लाख 3 लाख उसके आसपास हो रहे थे, और स्टूडेंट्स तो हमारे पास 50 लाख है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम चाहे तो ये पूरी जो पेंडेमिक थी उसको हम आसानी से टेकल कर सकेंगे। तो अभी आपके एरिया में सब आई थिंक अलग अलग क्षेत्र से हो गए, तो जरा बताइए कि वहाँ क्या क्या अभी सिचुएशन है, केसेस के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तो आप कुछ बताइए जी। स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, कोई भी आप अनम्यूट करके। जी राकेश जैन जी बोलिए। नमस्कार। यस सर, आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा, जहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था पूरे इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट। वहाँ पे भी दूसरी वेव में काफ़ी पेशेंट आए, लेकिन वहाँ पे वैक्सीनेशन और ये बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, बहुत शानदार ढंग से चल रहा है, और पब्लिक भी बहुत जागरूक है, और बाकायदा मोहल्लों के अंदर जाके उनको जागरूक भी किया जाता है। अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया। आदित्य यादव, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आदित्य यादव। मोनू, नो मैम, ठीक है। आपके एरिया में कोविड के टाइम में आपने क्या देखा? आपने क्या किसी की मदद की या कैसा रहा? आप अपने बताएं जरा। मैम अभी तक तो लॉकडाउन ही है इधर नेपाल में तो। अच्छा, नेपाल में हैं आप, ओके। नेपाल। तो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में लॉकडाउन है? मैम पूरी नेपाल में अभी तक। अच्छा, तो काफी स्ट्रिक्टनेस है वहां पे? बहुत ही स्ट्रिक्ट है मैम अभी अभी भी। अच्छा, आप किसी की मदद कर पा रहे हैं क्या? इस स्थिति में है कि आप किसी की मदद कर पाए, अगर किसी को कोई जरूरत हो तो? या कि आपने मदद की किसी की? मैम अभी तक तो नहीं है। अच्छा, आपके घर में सब लोग ठीक हैं? यस मैम, ऑल राइट, बहुत सब आपके घर अच्छा। में आपके घर में सब, तो आप लोग इसीलिए इससे बच पा रहे हैं क्योंकि आप घर में हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये भी बात है यस। कि आप घर पे रहें तो आप इन्फेक्टेड कम हो पाएंगे।
और भीड़ भाड़ वाली जगह जाएंगे तो ज्यादा हो पाएंगे। हाँ जी, और कोई? अभिषेक, रंजन, मोनू, एनीबडी, कोई भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। फैकल्टीज, कोई भी आप अपने एरिया रुचि में अभी मैम, क्या मैं थोड़ा हालात कुछ है। खोल देता हूँ ताकि बच्चों को बोलने में आसानी जी हो। जी जी सर। जी। हाँ, देखिए एक्चुअली कोविड जब स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो व्हाट प्रॉब्लम वी स्टार्टेड फेसिंग बेसिकली इन जयपुर और एवरीवेयर। ओके, सबसे बड़ी बात हुआ कि जो पेशेंट्स, सबसे पहले तो पैनिक होता है अगर किसी को ये सब जो सिम्टम्स आप जान रहे हैं, चाहे सांस में प्रॉब्लम हो, खांसी हो रही हो, कफिंग हो रहा हो, तो जो पैनिक होता है उसके बाद वो टेस्ट के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में जो भीड़ लगनी शुरू हुई, हॉस्पिटल में जो बेड्स नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर्स वहाँ नहीं मिल रहे थे, नर्सिंग स्टाफ्स नहीं मिल रहे थे, इसमें नो डाउट चूंकि वी ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मल्टीपल, इवन आवर यूनिवर्सिटी, आवर you can honorable chairperson sir and chief mentor sir and the directors are also involved in this corona warriors, as a corona warrior, so we are already part of this, and we started our help desk also. So we facilitated, हम लोगों ने बेसिकली हेल्पलाइन नंबर एक ऑलरेडी जारी किया, जिसमें था ये कि भाई आपको 24/7 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल फॉर बेड्स, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे तो उसको सरकार की जो गवर्नमेंट्स की जो वेबसाइट्स पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हर स्टेट ने अपना वेबसाइट बनाया जिसमें किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स थे, उसके अवेलेबिलिटी को वो स्टैटिस्टिकल डाटा को शेयर कर रहे थे। तो हेल्प डेस्क क्या कर रहे थे कि वहां से डाटा लेकर के उसके बाद फोन करके, क्योंकि पेशेंट का जो अटेंडर होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो उसको फोन करे 10 जगह, वो तो जो हेल्प डेस्क पे जो लोग बैठे हुए हैं वो फोन करके देखते थे कि भाई कहाँ पर बेड मिल रहा है, अभी आईसीयू बेड चाहिए, वेंटिलेटर बेड चाहिए, क्योंकि ये भी होता था पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल मूव करना है। अदरवाइज हो सकता है कि आप यू कैन लूज दैट पेशेंट, अगर वो पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसने आपने किसी हॉस्पिटल में भेजा, वहां पर आईसीयू अवेलेबल, और वो पेशेंट को आईसीयू में भेजना था, कोई पेशेंट को डायरेक्ट वेंटिलेटर पे भेजना था, और आपने ऐसे हॉस्पिटल में भेज दिया वहां वेंटिलेटर नहीं है, तो ये सारी चीजें करनी थी। दूसरा जो क्लास ऑफ प्रॉब्लम जो आया, आप बच्चे सब सुन रहे होगा, आप लोगों ने किया भी होगा, और हमको लगता है जब मैं बोलूंगा तो आप लोग भी बोलना शुरू कर दोगे, जब आपका टीचर कर रहा है, जब आपके मैनेजमेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रुचि मैम जैसी टीचर, जो हमारी जो डीन है स्टूडेंट वेलफेयर की, और बहुत सारे टीचर्स जो हैं जो हम स्टूडेंट्स को अपने इस तरह की शिक्षा देते रहते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम एक आया कि भाई ऑक्सीजन का, जो होम क्वारंटाइन जो हो रहे थे, अब होम क्वारंटाइन में उनको ऑक्सीजन पहुंचाना था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हमने देखा, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है, अपने सोशल मीडिया में शेयर कर रहे थे वो, तो उनको जो है ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन कब पहुंचाएंगे आप? जब आपको पता होगा कि आपके पास सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, कुछ बैकअप, उसको आप रिफिल कराएंगे और उसके बाद उस पेशेंट को पहुंचाएंगे। तो उसका वो भी एक पूरा एक साइकिल बहुत सारे लोगों ने सीखा है और हम लोगों ने भी सीखा उसको। थर्ड प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस किया, वो एक प्रॉब्लम है जिसको ऑलरेडी हमारे टॉपिक एक हेडिंग भी है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी को घर में हो गया तो पूरा घर पैनिक हो जाता था, ठीक है, पूरे उस बंदे को हमने किसी कमरे में बंद कर दिया। एक तो बेचारा पेशेंट है वो, ठीक है, उसको ऑलरेडी किसी तरह से इन्फेक्टेड हो गया वो, किसी वजह कर भी, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन, जो लेकिन वो हो गया। उसके बाद जो घर पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, हर घर में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो रहा था, उसको बिल्कुल किनारे कर दिया गया, उसको प्रॉपर केयर नहीं हो रहा था। तो इसको भी देखना है हम लोग को कि हम लोगों को किसी को साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा हैम्पर नहीं करना, उसको ज्यादा उसको ट्रॉमा में नहीं डालना है कि वो पेशेंट वक्त से पहले कोलैप्स कर जाए। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी होगी आने वाले टाइम में, और डेफिनेटली विशाल सर जितना गाइड करेंगे, हम लोगों ने जो ऑलरेडी बनाया है, और मैं आज ही आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में आई विल टेक वन सेशन सेपरेटली ऑन दिस, कि भाई कैसे उसको साइकोलॉजिकली कैसे इसको करना। यूनिवर्सिटी इज ऑलरेडी डूइंग, स्टूडेंट के साथ भले नहीं हुआ होगा, लेकिन फैकल्टीज के बीच में, हम लोगों के बीच में एफडीपी हुआ है, and some of you have already attended, कि हम साइकोलॉजिकली इस पेशेंट को कैसे मजबूत रखें ताकि वो इस लड़ाई से, क्योंकि जब वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसकी लड़ाई के कई फेजेस होते हैं, कभी कभी सांस उसका रुकने लगता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। उस टाइम में पेशेंट को अगर आप साइकोलॉजिकली सपोर्ट नहीं करेंगे, मेडिकली सपोर्ट नहीं करेंगे, फिजिकली उसको आप मदद नहीं करेंगे, फिजिकली भी कैसे मदद करना है, दैट ऑल्सो यू ऑल हैव टू लर्न, कि आप उसको टच करें तो कैसे टच करें, आप उसको जाके मेडिसिन दे तो कैसे मेडिसिन दें, आप उसको खाना दें तो वो कैसे दें, ये सारी चीजें हमको सीखना है। बिकॉज जैसे अभी विशाल सर ने कहा आप लोगों को कि एक आदमी कम से कम एक आदमी की मदद करने लगे, और एक आदमी अगर एक आदमी की जान बचाता है
इनफैक्ट बेसिकली आप पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं। तो मैं चाहता हूं अब स्टूडेंट की तरफ से ये काम आप जो लोग कर रहे हैं आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। मैंने तो बता दिया है कि आपके मैनेजमेंट ने किया है, आपके चेयरमैन सर ने किया है, डायरेक्टर सर ने किया है, कनिष्ठ सर ने किया है, जा करके आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। ज्ञान विहार के पूरी कई टीचर्स ने किया है। मैं खुद जो बोल रहा हूं, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो आपसे बात कर रहा हूं, आई वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन मेनली सच ऑपरेशंस एंड डेफिनेटली आई होप कि माई स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो डूइंग। तो आप प्लीज यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस और एटलीस्ट ये भी शेयर कर सकते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो विशाल सर एंड वी ऑल विल गाइड यू ऑन दिस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ओपन अप दिस टॉक। और जैसे सर ये आपने कहा हेल्पलाइन नंबर का, हमारी जो ये कोशिश है वो यही है कि कॉलेज की ओर से एक ये कोविड वॉलंटियर कोविड हेल्पलाइन सेल खोला जाए और उसके अंतर्गत हमने 5 टीम्स बनाई है। वो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। अगर किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं कि आपने क्या क्या मदद की हो या आपका क्या रोल रहा हो, आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आप में से कोई स्टूडेंट अगर कुछ बोलना चाहता है तो फैकल्टी अगर इफ दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, एनी ऑफ द सीनियर फैकल्टीज, यस, especially I think BPT department can share their experience. They have done lot. Pharmacy department can share some of the experience. Biotech departments. We are doing some lot many research also, which can contribute to our country and to our society. So they can share some of their experience. Anyone? सर मैं बोलना चाहूँगी डॉक्टर मीना। Please, जी please. मैडम। मीना जी, हाँ जी सर, जो भी आपने बताया कि जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव रहा कोविड के जो ट्रीटमेंट में। और वाकई में जो आपने बोला वो वास्तव में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने देखा खुद ने भी, मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए थे और मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ भी बीमार हो गए थे और काफ़ी इधर जो है आजू बाजू में पड़ोस में काफ़ी लोग बीमार रहे। तो उस दौरान सर मैंने खुद ने पर्सनली, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे स्टार्ट पता चला हमको कि कोरोना है तो हम बहुत डर गए थे। बट जैसे ही जो माँ का, जिसको मैं बता रही हूँ कि माँ का जो टच अपनी संतान के लिए, जो माँ का जो एक होता है ना टच, वो कितना कारगर होता है ट्रीटमेंट में। मतलब आज तक मैंने नहीं देखा कि माँ का जो टच है वो इतना मतलब कारगर, एक इलाज के लिए इतना कारगर साबित होगा। मैंने खुद ने देखा, मेरे जो 2 बच्चे हैं वो बीमार हो गए, एकदम बहुत ज्यादा बीमार हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको एकदम एडमिट करने की चांस बन सकती है। तो सर मैंने देखा कि उनको, मैंने एकदम साइकोलॉजिकल उनको, मतलब मैं डरी नहीं उस टाइम में, और मैंने उनको बोला कि नहीं एकदम ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुमको, एकदम तुम ओके हो, एकदम सही हो। और मैंने कोई मास्क नहीं पहना उनके सामने, ना सर मैं कहीं उनसे दूर रही, ना मैंने उनको अलग से रखा। क्वारंटाइन रखने का होता है इसमें, लेकिन सर मैंने उनको बिल्कुल कोई क्वारंटाइन नहीं किया। और उनको सर मैंने इतना मतलब अफेक्शन दिया उस टाइम में, इतना लाड से उनको रखा, इतना प्यार से उनको इतना ऐसा कर दिया मैंने कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और वाकई में सर उस दौरान वो बच्चे दोनों एकदम ठीक हो गए, जबकि उस टाइम में बहुत डर था। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सर ये जो चीज है ना वो वाकई में बहुत मैंने देखी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि अगर आप किसी को साइकोलॉजिकल अगर आप सपोर्ट करते हो कि नहीं आपको कुछ नहीं कोरोना में कुछ नहीं, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। नहीं ठीक होने वाला आदमी भी एकदम ठीक हो जाता है। दैट्स वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के वजह। और मैडम ने जो कहा वो कई लोगों के साथ हुआ है, एकदम मोरल पूरा डाउन हो जाता है। और जो ये हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज है उसकी तो जरूरत नहीं होती, पर फिर भी वो मन से ऐसा अगर सोचने लगे कि अगर अरे मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। कई लोगों की जान इस वजह से गई है, मतलब कोविड से नहीं पर कोविड के भय से। और इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं ये हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। और कोई साथी बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? सर नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार सर, निशांत जी नमस्कार। सर मैं भी आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि जी। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ साइकोलॉजिकली अपन हर्ट हुए हैं, और ड्यू टू व्हेन जब बंदा बीमार पड़ जाता है, कोविड अफेक्टेड हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तभी हम उसकी बात कर रहे हैं। मगर ज़्यादातर अपन ने देखा जाए कि इस कोविड एरा में सर रिसेशन बहुत ज़्यादा आया है, लोगों की जॉब्स बहुत गई हैं और फाइनेंशियली बहुत लॉसेज हुए हैं। तो उससे भी काफ़ी उभरने की लोगों को ज़रूरत है
कि कोई बंदा पॉजिटिव हो जाता है तो सर उसको भी काफी लॉसेज हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि 9-9 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं प्राइवेट में, हाँ। और नॉट इवन 9-9 लाख, मतलब आप ये देखिए कि अगर कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा है तो भी वो 40-50 हजार रुपए से नीचे आ जाता है, क्योंकि टेस्टिंग कराएगा, HRCT है, 10 तरह के टेस्ट हैं, तो उसकी भी बात अपन को जरूर मेरे हिसाब से करनी चाहिए सर। जी सर, वो भी एक पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है। यस इज वेरी वैलिड पॉइंट Yes, निशान। yes. में इसमें जहाँ तक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी देखा कि हर गवर्नमेंट ने नो डाउट वो- एक रेगुलेटरी पास तो किया, और बहुत सारे लोगों का कंप्लेन किया, गवर्नमेंट हैज टेकन सम एक्शन ऑल्सो। मैं राजस्थान गवर्नमेंट का आई नो सम ऑफ द केसेस जो आप कह रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स ने 8-8, 9-9 लाख का 10 दिन 15 दिन के अंदर में बिल बनाया या महीना भर में बिल बना दिया, और वो पेशेंट इस पोजिशन में नहीं है कि भाई उतना एफर्ट कर सके, तो वो नो डाउट उसका गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके लिए कहा कि भाई उसको भी लिमिट किया गया है। और डेफिनेटली इसको और भी, जैसा आप चाह रहे हो कि भाई इसको और भी फर्दर इस पे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, गवर्नमेंट को और इस पर ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। तो हमको लगता है विशाल सर इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ही कैन डेफिनेटली पास आउट दिस मैसेज। तो हमको लगता है Yes, ये yes, sir. बहुत जरूरी है ये। हर जगह वैसे तो हर स्टेट में वो एक गाइडलाइन आ गई थी कि भाई एम्बुलेंस है तो आप मैक्सिमम इतने पैसे ले सकेंगे, आइसोलेशन बेड है तो इतने, वेंटिलेटर के इतने, वो सब वैसे लिमिट किया गया था। और मैं गुजरात का बता सकता हूँ कि कुछ कंप्लेंट्स भी हुई है और हॉस्पिटल को फाइन भी किया गया है कि भाई आपने ज्यादा पैसे क्यों ले लिए। तो एक वो भी इफेक्ट रहा था। फिर भी अगर कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो एक्शन लेने के लिए मैं भी मैसेज पहुंचाऊंगा। बाकी कोई अपना कुछ बताना चाहेगा? ओके, तो अ, जी जी, बोलिए बोलिए सौरभ जी। हेलो सर, दिस इज यस। सौरभ सिंह फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यस सर। सर, मतलब कोविड के टाइम में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट मैं और मेरी वाइफ ने कुछ अपने सैलरी का अमाउंट निकाल के, और बीइंग इंस्पायर्ड बाय राफी सर ने इतना सारा किया था, तो हम लोगों ने भी जो मतलब जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़े गरीब बच्चे थे, गरीब फैमिली थी सर, उनको हमने राशन वासन ये सब दिलाया। मतलब हम लोग भी जितना हो बहुत सका बढ़िया, हमने भी हेल्प करने की कोशिश किया सर। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और सर बीइंग ए टीचर सर, मैं एडवाइस करना चाहता हूँ बच्चों को। अभी सर क्या है कि जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है सर, थोड़ा सा मतलब भी कम हो गया है, तो सर सब कैजुअल लेने लगे थे बहुत ज्यादा, अभी कोई जी मास्क वास्क पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा अभी भी हम लोग को थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ताकि ये चीजें मतलब कंट्रोल हो सके, जो थर्ड वेव आने वाली है या ऐसा बोला जा रहा है आएगी। यही था मेरे बिल्कुल सर। आपने सर शुरुआत यहाँ से की कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया, आपने सर बहुत ज्यादा कुछ किया है एक्चुअली। थैंक यू इसमें सर। कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आपने किसी का वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया तो भी ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। थैंक यू। जी सर। सौरभ एक्चुअली हमारे पुराने एलुमनाई भी हैं। ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, और अभी राइट नाउ ही इज सीनियर फैकल्टी इन सिविल। वेरी गुड। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर के काफी बड़ा काम किया था। इस बार भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाउस में जो ऑलरेडी बात चल रही है, तो मोर देन 3000 फैमिलीज को मोर 2 महीने का करीब करीब राशन हम लोग पहुंचाया है इस बार भी। ऑक्सीजन भी अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स को ही किया। बेड भी 100+ लोगों को बेड अवेलेबल कराना। आरयूएचएस में शायद आप देख रहे होंगे हमारी टीम को कि आरयूएचएस में कंटिन्यूअसली पानी, बाहर जो जो परेशान जो लोग थे, धूप में इस टाइम में गर्मी बहुत थी, मई और अप्रैल, मिड अप्रैल एंड मिड ऑफ मई में बहुत वेदर बहुत यहाँ हॉट था। और आरयूएचएस जहाँ में मैक्सिमम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पेशेंट को कैटर वही कर रहे थे। 1500 पेशेंट्स वहाँ रेगुलर ऑन एवरेज थे। कुछ दिन तो 1700 तक क्रॉस किया। तो वहाँ पे पानी लोगों को पिलाने के लिए, और in fact we got some help from corporates also, like I already worked with Azim Premji Foundation. Presently I'm working with Bosch also on this problem, and definitely आपके साथ भी अब हम लोग आगे काम करेंगे। तो ज्ञान विहार is always open for such supports, and we always give the values for our social issues. बहुत बहुत बढ़िया सर। तो बस यही काम हमें अभी आगे बढ़ाना है, और वो हम कैसे बढ़ाएंगे ये मैं अभी ये शेयर करके आपको एक दिखाता हूँ फॉर्मेट।
हम अभी कॉलेज की ओर से जो ये वॉलंटियर सेल्स खोले जा रहे हैं, कोविड हेल्प सेल, तो उसमें जनरली ये जो भी ये कोविड की सहाय के कार्य है उसको हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ये सभी जैसे आप देख सकते हैं, तो उसकी 5 टीम्स, और जो भी स्टूडेंट्स को अ, ये फेवरेबल लगे कि भाई मैं टीम 1 का हिस्सा बनूं तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकूंगा, टीम 2 में अगर ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन या है तो मैं उसमें अच्छा काम कर सकूंगा। तो ऐसे टीम वाइज स्टूडेंट अलग अलग डिवाइड होके इस कार्य को कर सकेंगे, और ये सभी कार्य सोशल मीडिया और घर पे रह के ही करने हैं। हमें एक्चुअली सर्विस सीकर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में ब्रिज बनने का काम करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीम 1 है, तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम, उसके पास अभी जैसे सर ने बताया कि बेड्स वगैरह की जानकारी होगी, तो वो उसका पूरा एक लिस्ट बनाएंगे कि डेट वाइज कि आज की डेट में आज इतने बेड यहाँ पर अवेलेबल है। फिर दूसरा उसका कार्य वैक्सीन अवेयरनेस के लिए, फिर क्राउड मैनेजमेंट एट वैक्सीनेशन सेंटर, तो ये टीम 1 के कार्य। फिर उसी तरीके से टीम 2, तो वो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का देखेगी कि कौन कौन से एनजीओ है, ग्रुप्स है जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको कहीं से अगर क्वेरी मिलती है कि भाई यहाँ फूड डिलीवरी की जरूरत है, तो आप उन्हें कनेक्ट करवा सकते हैं उसके साथ। फिर ये टीम 3 है, तो ये फैमिली रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके सपोर्ट के लिए कि उसको आप कैसे टेकल करें, उसके लिए टीम 3। फिर टीम 4 है, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सभी दवाई और इनके रिलेटेड जो मेडिसिनल जो भी एसेंशियल्स है, तो उसे हम कैसे मुहैया करवा सके पेशेंट तक। तो उसमें आपके पास पूरा एक रजिस्टर में अपने पास कौन कौन से मेडिकल है और कहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ है, कौन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, उन सब की डिटेल्स और पूरी वेरीफाइड डिटेल। कई बार ये भी देखने को मिला कि वो नंबर्स जो थे कि भाई ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारे पास एक फोटो आता है, वो वैसे 10 फोटो आते हैं, और अगर मुझे ही ऑक्सीजन की मेरे फैमिली में किसी को जरूरत है, तो मैं उस 10 को फोन करूं और 8 ने ना बोले कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, तो जो पेशेंट है या फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर, तो उसका पूरा मोरल डाउन हो जाता है, वो पूरा नेगेटिविटी में चला जाता है कि अरे अब तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा ये काम हम ही कर दे, उसे सॉर्ट आउट कि भाई कौन कौन से ये ऑक्सीजन डिलीवरी वाले हैं, कहाँ पर कितने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। इस तरीके से हमें ये टीम 4। फिर टीम 5 आती है। टीम 5 ये साइको सोशल सपोर्ट के लिए कि कम्युनिकेटिंग विथ कोविड पेशेंट विद द स्किल ऑफ एम्पैथी एंड अल्टरनेट फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। तो जो ये साइकोलॉजिकल पूरा नीड होता है कोविड पेशेंट का, तो टीम 5 में जो लोग काम करेंगे तो वो उसे एड्रेस कर सकते हैं। तो टीम 5 में एक मॉडल हमारा उधर गंगानगर में, अनूपगढ़ में सुमन मैडम है, तो वो क्या काम करवा रहे हैं कि डायग्नोसिस सेंटर से ही पूरा वो लिस्ट ले लेते हैं कि आज की डेट में कौन कौन पॉजिटिव आया है, और वो अपने सामने से ही खुद ही फोन करते हैं कि आपकी अभी तबीयत कैसी है, क्या है हालचाल, वही जान लेते हैं। उस तरह से हम सामने से भी इसमें कॉल कर सकेंगे। तो अभी आपको ये सारा कार्य जो कि है वो फोन पे ही चलेगा, तो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे अभी कि फोन पे आपको बात किस तरह से करनी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, तो बारी बारी से एक एक टीम का हम एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए ये आप टीम 1 का हिस्सा है और आपको किसी का कॉल आता है, ये आलोक जी का। तो अभी उस आलोक जी को आप क्या आंसर करेंगे ये हम जानेंगे। अभी आप टीम 1 में वॉलंटियर है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। आपके पास जो भी हॉस्पिटल्स की सारी डिटेल्स अवेलेबल है कि कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पर कितनी जगह है, कहाँ पर कितने बेड खाली है, ये सब आपको पता है, और वो आप उसे किस तरह से बताते हैं ये हम अभी जानेंगे। तो कौन इसमें बात करना चाहेगा? कोई भी दो स्टूडेंट्स, एक एज अ आलोक और एक एज अ वॉलंटियर। Akshit,
आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक को एज अ आलोक बात करनी है वॉलंटियर से कि आलोक जी वॉलंटियर को फोन करके ये हेल्प मांग रहे हैं, तो अभी वॉलंटियर उसे किस तरह से आंसर करेगा हम ये देखेंगे। आप कोई अक्षित, आर यू देयर? हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। आदित्य, अक्षित, तेजस, विक्की, कोई भी आप आ सकते हैं, बोलिए। इसको जो ये लिखा हुआ है ये पढ़ना है आपको। यस मैम। हाँ जी। हम्म, बोले। हिंदी में बोलना है मैम कि विशाल इंग्लिश जी, में? हाँ जी एक हाँ, मिनट हिंदी नितेश में जी, जिसमें आप जैसे। जी नितेश जी एक मिनट, आपका एक फ्रेंड की जरूरत होगी जो मतलब आप फोन पे बात कर रहे हैं ना अभी, तो ऐसे 1 to 1 बात कीजिए उनसे ही डायरेक्ट। हाँ, नितेश हाँ और कोई भी एक और स्टूडेंट आ सकते हैं। जी नितेश जी आप एज अ आलोक बात करिए और दूसरा जो फ्रेंड है वो वॉलंटियर, तो वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा उस तरह से। जल्दी जल्दी भाई। आदित्य, आदित्य यादव, आप ज्वाइन कर लीजिए। नीतीश, चलो एक साथ में जोड़ मैं लीजिए। करता हाँ हूँ जी। मैं करता हूँ मैम, अच्छा विष्णु वर्मा, एमएड जी सेकंड अच्छा, ईयर विश, में। हाँ जी आप करिए। हाँ ठीक है जी सर, ठीक है सर, ठीक है, आप बोले। यस सर। आलोक जी बोलेंगे। जी नितेश जी अभी आप विष्णु जी को एज अ आलोक कॉल कीजिए। हेलो। सर मैं, मेरे को बोलना है सर इस विष्णु सर के। हाँ 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 आप ये जो आप सामने लिखा है ये पढ़ो। मैं बोलता हूँ सर, आलोक मैं खुद बनता हूँ, ये इन सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि इनको समझ में बैठी नहीं है बात मेरे ख्याल से। मैं आलोक हूँ, उम्र 50 साल है। मुझे 3 दिन पहले कोरोना का पता चला था। कल शाम तक मुझे इस बुखार इससे हो रहा था, और लेकिन आज सुबह से मुझे सांस लेने में भी समस्या हो रही है। मेरे परिवार ने पूरे शहर में आईसीयू बेड की तलाश की है, लेकिन कहीं मिला नहीं है। कृपया मेरी मदद करें, मैं बहुत चिंतित हूँ इस मामले। नीतीश, आप बताइए कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नितेश जी अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आप इसे क्या जवाब देंगे? सर मैं इसको बोलेंगे आप टेंशन मत लीजिए, हम सब यहाँ पर मतलब सर अवेलेबल करता हूँ मैं, मतलब कॉल करके मतलब पूछता हूँ कहाँ पर है सर, उसको अवेलेबल हम करवाएंगे सर। जी उसको ऐसे बोलेंगे आप टेंशन मत लीजिए सर, हम लोग अवेलेबल करवा सकता हूँ, करवा देंगे। ओके। आपने 30 to 40% जो रिप्लाई देना था वो अच्छे से मतलब दे सकते हैं कि एक तो आपने कहा उसका आप लोकेशन जानेंगे, बिल्कुल राइट, कि उसका हम लोकेशन जान के उसकी क्या क्या नीड है। पर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि जब हम बात करें तब एक कोविड वॉलंटियर्स की क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्किल होती है लिसनिंग, कि आपको उसे पूरे का पूरा सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कान से भी और दिल से भी, कि उसकी टोन, उस वो जो बात करता है तब उसकी टोन कैसी होती है, तो उसे भी आपको महसूस करना है। टोन से भी आपको काफी आइडियाज आ जाएंगे कि वो अभी क्या क्या फील कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है। तो लिसनिंग में आपको उसे एक बार सुनना है और ऑब्जर्व करना है उसकी टोन को भी। और जैसे कि ये स्क्रिप्ट है और आलोक जी ने ये बात बोली, तो आपके आंसर में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हाँ आलोक जी, आप 50 साल के हैं, और जैसे आपने बताया कि आपको 3 दिन पहले कोरोना का पता चला था और कल शाम तक आपको बस बुखार हो रहा था, मगर आज सुबह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अभी आपका पूरा परिवार आईसीयू बेड की तलाश में है और मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से हमें उसे फिर से बताना होगा ताकि उसे भी लगे कि नहीं, इसने मुझे एग्जैक्टली सुना। कभी कभार क्या होता है कि जो लोग फोन करते हैं तो एकदम पैनिक में होते हैं, तो कोई
कुछ इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं वो हम तक पहुंच नहीं पाती, और या तो फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टेंशन में होते हैं तो बहुत स्पीड में बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं पर कुछ भी अगर छूट गया हो तो वो एक बार रिपीट होने से कंफर्म हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें लिसनिंग का उपयोग करके जो भी ये बोले उसे एज इट इज रिपीट करके उन्हें बताना है। फिर हमारी जो दूसरी स्किल होगी वो होगी संवेदना। कोई बताएगा आप में से कि संवेदना का अर्थ क्या होता है? आप क्या समझ रहे हैं संवेदना का मतलब? सर इमोशन। इमोशन। यस, हम 10% राइट। रितेश जी क्या आप? मैं सुन नहीं पाया। रितेश जी, पेशेंस। पेशेंस मतलब धीरज। संवेदनशील जो होता है सर, संवेदनशील। ओके, संवेदनशील होना, जी वो तो हमें होना ही है। और कोई? जी मीनू मैडम। सर उनके साथ में सहानुभूति प्रदर्शन करना, सहानुभूति दिखाना और धीरज बनवाना उनको कि हम जी, आपके साथ में। सहानुभूति और धीरज। सहानुभूति और संवेदना दोनों भाई भाई ही है। सहानुभूति एक एक्सटर्नल थिंग है। यस सर, वेदना एम्पैथी को जो राइट। उनकी जो वो वेदना व्यक्त कर रहे हैं, उस वेदना को हम सहानुभूति द्वारा मतलब जो उनका जो मतलब दुख है, जो उनकी जो वेदना है, उस सहानुभूति द्वारा उनकी वेदना को दूर करना है। मतलब योर पेन इज माय हार्ट। यस यस, मीनू मैडम एंड मुकेश सर, यू आर राइट। मीन्स योर पेन इज माय पेन। मतलब हमें उसकी जो वेदना है, संवेदना, सामने वाले की वेदना हमें सम एग्जैक्टली और इक्वली हमें फील करनी है कि वो अभी क्या फील कर रहा है। ये हुई संवेदना। तो सबसे पहले तो इसमें हमें उसकी जो फीलिंग्स है उसे आइडेंटिफाई करनी होगी। अभी ये आलोक जी अभी क्या क्या फील कर रहे होंगे, वो आप में से कोई मुझे बताएगा? देखिए, एक मैं बताता हूँ कि इसने खुद ही कहा है कि कृपया मेरी मदद करे, मैं चिंतित हूँ। तो एक फीलिंग हुई चिंता। और कौन कौन सी फीलिंग हो सकती है? चिंता के अलावा राहुल जी क्या? सर कोविड का चिंता हो सकता है। कोविड का चिंता, हाँ चिंता, ये तो एक हो गई। अभी चिंता के अलावा आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, उसकी तलाश कर रहा है, तो उसकी चिंता, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रेथलेसनेस है। या यस, इस स्टेज पे हमने कुछ लोगों से बात किया है, तो आई जस्ट वांट टू शेयर सम ऑफ द थॉट्स। ओके, यस सर। देखिए, जो स्टेज यहाँ पे आलोक जी जो बता रहे हैं ना, देखिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि फीवर तो पहले आ ही गया था उनको, अब उनको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मीडिया में जिस तरह से चीजें आती है ना, सांस के प्रॉब्लम के बाद अब होता है कि हमको एटेनी हाउ हॉस्पिटल पहुंचना और आईसीयू और ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद अब पेशेंट ये समझ लेता है कि हम आई एम गोइंग टू लूज माई लाइफ नाउ, यानी उसको मौत का डर जो है उसमें समा जाता है वो। तो सबसे बड़ी बात कि मेडिकली जो लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए मेडिकल साइड से, उनको पता है कि पेशेंट एक तरह से आधी जंग यहाँ पे हार जाता है वो, यानी जो मेडिसिन ले रहा है, अगर किसी को पता चल जाए कि वो मरने जा रहा है तो मेडिसिन का इफेक्ट ऐसे ही उस पर बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो जब ये एक मैडम जो बता रही थी, मीनू विजय जो बता रही है, उसमें सिंपल सी बात है कि भाई सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजिकली उसको जो संवेदना की जो बात हो रही है ना, उनके दर्द को कहना कि हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपकी हैं, और जल्द से जल्द आपको जो है, आप परेशान मत होइए, हम जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल, और जस्ट गिव मी 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी है, कि हम आपको यही हॉस्पिटल का अल्टरनेटिव है, और आपके यहाँ लोकेशन आपने दे दिया, एम्बुलेंस आपके यहाँ पहुंच रहा है, आपको इतनी चीजें बोल देनी होगी। यानी एक तो उसके अंदर का होप को जगाना है। सबसे बड़ी बात है कि जो उसने ये कह रहा है कि सांस में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम 3 है, फीवर आ चुका है उसको, सांस में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, नो ही टोटली सरेंडर, ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, मेरी मदद करो। जिस तरह से मेन रोड पे कभी एक्सीडेंट होता है और आदमी अगर उसके सकत होगा तो खुद खड़ा होकर चलने लगेगा वो, लेकिन नहीं होता तो चिल्लाता है कि हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो जिस तरह से वहां पे आप मदद करते हैं, उसी तरह से आपको सोचना होगा ऑन फोन, आप एक फोन पे कैसे आप उसको उस तरह से मदद करते हैं। जिस तरह से एक आदमी एक्सीडेंट अगर हो गया है और बिल्कुल गिरा हुआ, खून से लथपथ हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उस तरह की फीलिंग्स को आपको फोन से ट्रांसफर करना होगा। और उसके बाद जो डेफिनेटली जो आपको जो एक्शन जो लेना है, जो आपको
दूसरे लोगों ने कहा कि विद इन 5 to 10 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प डेस्क एंड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट रिसोर्सेज आपको उनको उनके यहाँ एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए, उनको ऐसे हॉस्पिटल लेके जाना है। चूंकि एम्बुलेंस में ऑलरेडी बहुत सारे एम्बुलेंस में आईसीयू सपोर्ट होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, तो इमीडिएटली पहले उसको एम्बुलेंस पे ले लीजिए। एम्बुलेंस का भी आपको बता दें कि हम लोग ऐसे क्राइसिस से गुजरे हैं कि एम्बुलेंस को भी एक टाइम होता है, उसके टाइम के बाद छोड़ना होता है पेशेंट को। अगर बाई द वे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा तो एम्बुलेंस पर बहुत देर तक आप लेके नहीं घूम सकते हैं। ऐसे क्राइसिस को हम लोगों ने फेस किया है एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटी फेस सिचुएशन कि अगर 2 घंटा 3 घंटा तक बेड ही नहीं मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी कि एम्बुलेंस में घूमता रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वहां भी। तो ये सारे सिचुएशन को आपको समझना होगा एंड जो भी आपके पास बैकअप टाइम है उस टाइम में आपको और आपकी टीम को पूरी तरह से जो कोरोना वॉरियर की टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि हमको एट एनी हाउ उस बंदे को बचाना है, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है विद रिक्वायर्ड सपोर्ट। क्योंकि आप जिस हॉस्पिटल में भेज रहे हैं मालूम हुआ कि बेड है तो आईसीयू वाला बेड नहीं है, आईसीयू वाला बेड है तो वेंटिलेटर नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी एंड यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी वे में हमें उसकी मदद करनी होगी। और जैसे रुचि मैडम ने और बताया कि उसे ये चिंता हो सकती है कि आईसीयू बेड ना मिलने की। चिंता के अलावा भी उसकी जैसे हुसैन सर ने कहा डर एक होता है। तो चिंता, डर, फिर उसे जैसे सर ने बताया कि उसे तो लगने लगेगा कि अब तो मैं चला ही जाऊंगा, तो होपलेसनेस, उसको पूरी निराशा में वो चला जाता है। तो ये सारी फीलिंग्स को हमें उसे कह के समझाना है कि भाई मैं आपके साथ ही हूँ और मैं आपको समझ सकता हूँ। देखिए इसमें दूसरे को समझना, ये मैडम आप कुछ कहना चाहती है? नहीं सर। ओके ओके। मीनू जी के बच्चे ने एक्नॉलेज किया कि हाँ मम्मी आपने जो कहा वो ठीक कहा है। जी जी, मीनू मैडम ने एकदम राइट कहा। छोटा बच्चा ने सर थोड़ा स्पीकर, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तो इसमें दूसरे को समझना ये सबसे बड़ा हमारा ये रोल होगा और हमारा सबसे बड़ा गुण भी होगा। क्योंकि इस समय में कोई किसी को समझता नहीं और सीधा एडवाइस देने लगता, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, वहां चले जाइए, यहाँ चले जाइए। अभी उस एडवाइस में से भी कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है, ये सब भी मिला जुला होता है। तो हमें सबसे पहले ये लिसनिंग का पार्ट बात करके उसे संवेदना के स्तर पे बताना है कि भाई मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप अभी चिंता में हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप डरे हुए होगे, आप निराशा में होगे। तो हमारे सेंटेंसेस भी उसी तरीके से होने चाहिए ताकि उसे लगे कि नहीं ये आदमी मुझे बहुत अच्छे से समझ रहा है। इससे क्या होगा कि वो उसकी जो एकाध नीड होगी, तो हो सकता है कि एक से ज्यादा भी नीड हो, तो वो आपको एकदम खुल के बताएगा कि नहीं मुझे तो ये भी जरूरत है, ये भी मेरा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप संवेदना का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और उसकी सिचुएशन समझने का प्रयास करें। इंग्लिश में संवेदना का अर्थ होता है कि पुटिंग योर फीट इन अदर्स शू, मतलब आपको अपने पैर को दूसरे के जूते में डालना है। अगर किसी को अपने जूते में कोई कीला लग रहा है तो उसे कौन सी वेदना हो रही है, तो उसके लिए हमें हमारा पैर उसके जूते में डालना है। पर उससे पहले हमने जो जूता पहना है अपने पैरों में उसे निकालना होगा और फिर उसके जूतों में अपना पैर डाल के हमें ये महसूस करना है कि उसे क्या दर्द हो रहा है। तो संवेदना का सबसे ज्यादा हमें प्रयोग करना है और उसी तरीके से हमें उसे बताना है कि भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी किस हालात का सामना कर रहे होगे, आप काफी अकेलापन सा महसूस कर रहे होगे। जो भी फीलिंग्स आप आइडेंटिफाई कर सके वो आपको उसे बताना है और फिर हमें प्रॉब्लम की ओर मूव करना है। अभी इस केस में उसे सांस लेने में समस्या हो रही है और आईसीयू बेड चाहिए, तो हमारे पास जो लिस्ट होगा XYZ हॉस्पिटल्स का, तो आप उसमें से उसे बता सकते हैं कि भाई आप ये वाली हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ पर आपको बेड मिल जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट होनी चाहिए, वो आपको पहले खुद से वेरीफाई हो चुकी चाहिए और फिर उसका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करके आप उसे कह सकते हैं कि अगर और कोई भी आपकी जरूरियात हो तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। इस वे में हमें पूरा जो
हमारा फोन का कॉन्वर्सेशन है वो करना है, ताकि एक अच्छे वॉलंटियर का हम रोल अदा कर सके। इसी तरह से सभी टीम्स के एक एक मेरे पास एग्जांपल है, तो हम शायद एक एक एक्सपीरियंस और बच्चों से शेयर करते हुए चले, अगर आप अलाउ करें तो। यस सर बिल्कुल। एक केस ऐसा था कि 2 से 2:30 बजे रात में एक सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे एक लड़की का फ्रस्ट्रेशन जो है कि भाई मतलब लोग फोन नंबर शेयर कर दे रहे थे कि यहाँ आप देखिए, यहाँ आईसीयू बेड मिल जाएगा, यहाँ बेटी ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो वो उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था कि भाई फोन काम नहीं कर रहा, ये हो रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। वो काफी परेशान थी। तो उसके लिए हमारे टीम के बंदे ने सबसे पहले जो है क्या किया कि पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लिया, उसके बाद उसको फोन किया और डायरेक्ट पहला सेंटेंस यही था कि मैडम आप प्लीज कूल डाउन हो जाए, आधे घंटे के अंदर में आपके घर के बाहर सिलेंडर लेके हम पहुंच रहे हैं। बस ये कूल डाउन, क्योंकि कूल डाउन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके घर में 2 माँ बाप और 1 भाई, 4 फैमिली मेंबर थे, उसमें 3 बीमार पड़े हुए थे और 3 को अकेले एक लड़की संभाल रही थी। वो 22 गोदाम के जयपुर के पास का मामला है ये। वहां 3:30 बजे के आसपास जो है हमारी टीम लेकर सेंटर पहुंची एंड फाइनली हम कह सकते हैं टेशूट की वो तीनों के तीनों ऑल ऑफ देम आर लाइव नाउ। तो कहने मतलब है कि ये सिचुएशन ऐसा होता है कि उस टाइम में जिसको आप फोन कर रहे हैं वो फोन पे भी आपको मतलब फोन पे बात करने की पोजीशन में है कि नहीं है, ये सब चीजें भी होती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप किस स्टेज के पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे आप। बिल्कुल सर, कि अगर ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाती है तो फिर आप ये रिपीट करेंगे और वो करेंगे तो वो बंदा बोर हो जाएगा कि अरे ये क्या कह रहे हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना होगा। पर जनरल केसेस में हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह से। तो ये अभी एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये सुष्मिता जी है और ये आपके सामने अपना ये कॉल करके ये प्रॉब्लम बता रही है, तो आप किस तरह से उन्हें जवाब देंगे। तो कौन स्टूडेंट्स अभी रेडी होगा? कोई भी 2 फ्रेंड्स बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ सर। जी बोलिए। आपके फ्रेंड को कहिए कि वो एज अ सुष्मिता आपसे बात करे। एज अ सुष्मिता मैं बोलता हूँ। अच्छा, एज अ सुष्मिता। तो आप आपके फ्रेंड जो है उनको बोलिए कि वो अनम्यूट करके एज अ वॉलंटियर आपसे बात करें। कौशल जी के साथ कौन ये एक्सरसाइज करना चाहेगा? Any faculty can also join. Raminder ma'am, are you there? यस फैकल्टी में से भी ज्वाइन कर सकते हैं। Uruz ma'am can try. Uruz ma'am? Yes, ma'am. I think you can try. Your voices are also very sweet. Okay. Can you please read it? Yes, ma'am. मैं सुष्मिता हूँ, उम्र 38 साल। मेरे पति कोविड पॉजिटिव है, उन्हें सांस लेने में बहुत गंभीर समस्या है। मेरे 5 साल और 9 साल के 2 बच्चे हैं। मुझे अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता है। मैं गृहिणी हूँ और मेरे पति एकमात्र रोटी कमाने वाले हैं। इसलिए अगर मेरे पति को कुछ हो जाता है तो मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। कौशल जी, इसका हम आंसर कैसे दे सकेंगे? यस सर जी। सबसे पहले तो उनको बोलेंगे कि सुष्मिता जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पति का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक होगा। हम और हमारे टीम के सभी मेंबर आपको पूरा हेल्प करेंगे और यदि लास्टली उन्हें कुछ हो भी जाता है तो हमारी
ऐसी कमेटी बैठी हुई है जो आपके बच्चों को पढ़ाने का खर्च उठाएगी, ऐसा कुछ सर बोल सकते इसमें एक मैं एडिट करना चाहूंगा कि आपको उसे ऐसा प्रोजेक्शन दिखाना ही नहीं है कि उसको कुछ हो जाएगा, तो उस माहौल में नहीं ले जाना है हमें। हाँ रितेश जी बोलिए। उस माहौल में हमें उसे नहीं ले जाना है वहां तक। अगर उसे कुछ हो जाता है तो बच्चों का हम ख्याल रखेंगे। हमें बस उसकी जो प्रॉब्लम है उसी को एड्रेस करना है। तो पहले जैसे कि आपने कहा, संवेदना का प्रयोग करके, और हमें उसे ये जताना है कि हम उसके साथ हैं और हम हमसे जो भी बनती होगी हेल्प वो करेंगे। और अभी इसे सांस लेने में समस्या है तो फिर आप उसे ये हेल्थ का सब कुछ पूछ सकते हैं कि भाई आपने डॉक्टर को ये कंसल्ट किया है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ऑक्सीमीटर से कुछ नापा हुआ है या नहीं। उस वे में हम उसका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने पति की हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचे और ये चिंता और जो टेंशन है उसका उसे कम सोचे। फिर अगर उसे कुछ और जरूरियत होगी ये मेडिसिन की या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वो अपने आप ही हमें बताएंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि वो खुद अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे टैकल करने के लिए कैपेबल ही होते हैं, मगर ये जो टेंशन और डिप्रेशन का पूरा जो बादल छाया हुआ है उसके मन पर, हमें उसे हटाना है। तो वो अपने आप ही जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करने लगेंगे। और अगर 2-3 प्रॉब्लम्स उसके सामने आते हैं तो हमें उसे प्रायोरिटी भी दे सकते हैं हम कि आप क्या चाहती है कि पहले मैं आपके लिए ये फूड का इंतजाम कर दूं कि फिर पहले ये आपको हॉस्पिटल का जरूरियत है, या उस वे में जो भी हमें उससे बात हो उस वे में हमें उसे रिप्लाई करना है प्रायोरिटी में, अगर 2-3 नीड्स एक साथ आ जाए तो इस तरह से हमें अपना जो कॉन्वर्सेशन है वो करना होगा। और फिर ये जो टीम्स है तो उसमें आप मैं एक गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। ये हाँ जी, विशाल जी जो फॉर्म्स शेयर कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सभी फैकल्टी मेंबर्स से, आप फर्दर इसे अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में कृपया भेजें। फॉर्म जब आप फिल कर देंगे तो पीछे उसमें एक ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उससे जो भी हम सब कोविड वॉलंटियर में पार्ट लेंगे तो वो सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे और अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एक्टिविटीज है वो हम वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो ये फॉर्म था। बाकी आप लोगों की ओर से कुछ आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, तो अभी जो सिचुएशन है वो काफी नॉर्मल है, तो अभी हमारा पूरा ध्यान वैक्सीनेशन के ऊपर होना चाहिए कि हम प्रिकॉशंस का खूब पालन करें, क्योंकि अभी ऐसा दौर है कि जो फर्स्ट वेव आई थी तो फर्स्ट वेव के बाद एक जो केसेस खत्म हुए तो हमने सोच लिया था कि भाई अभी कोरोना तो खत्म हो गया है और सबने लाइटली लेना शुरू कर दिया था, और उसका भुगतान हमने सेकंड वेव के रूप में हो गया हमारा। तो अभी एग्जैक्ट वही सिचुएशन है कि ये सेकंड वेव खत्म हुई है और अभी सब ने मान लिया कि कोरोना तो अभी खत्म हो गया और सब बिना मास्क के घूम रहे, कोई डिस्टेंस नहीं रख रहे। तो ये सब हमें अभी करवाना है। तो आप जहां पर भी हो वहां ये इस काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं अभी प्रेजेंट उसमें Sir, sorry to कि आप interrupt you. वैक्सीनेशन के लिए जी राकेश जी। Sir, this form, when I just click on this form, then this form is only applicable for the students. हाँ, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी सभी आप भर सकते हैं। हाँ, तो अभी आप वैक्सीनेशन, मास्क और ये सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। और आप जहां पर भी है अपने गांव में, सिटी में, तो आप कम से कम आपके घर के आसपास के लोग, आपके परिवार वाले
उनको ये सब चीजें प्रिकॉशंस रखने के लिए बताइएगा। और वैक्सीन के लिए भी कहीं कहीं पर ऐसा देखा जा रहा है कि कोई अफवाहें है, र्यूमर्स है, तो आप उसको खत्म करिए। और जो लोग जैसे भी मान रहे हो उसे उस तरीके से मनाने की आप कोशिश कीजिए। अगर कोई विलेज है, एक दो, ये शायद नोखा के हमारा एक वर्कशॉप हुआ था, तो वहाँ मैं विलेज का नाम तो भूल गया, पर उधर एक प्रॉब्लम ऐसा आ रहा था कि वहां पर लोग ये वैक्सीन का ले नहीं रहे थे और पूरा ऐसा सोच रहे थे कि भाई ये वैक्सीन लेंगे तो हम मर जाएंगे, बाद में 2 साल के बाद मर जाएंगे और ऐसा होगा, कोई फर्टाइल प्रॉब्लम होगा। तो फिर वहां के जो हमारे 2-3 स्टूडेंट्स थे, उसने ये देखा कि भाई ये लोग हमारे कहने से तो नहीं मान रहे। और फिर सरपंच जी जो थे उस गांव के, मुखिया जी, तो उसने सरपंच को मनाया और फिर सरपंच ने ही सबसे पहले वैक्सीन लेकर सारे पूरा जो विलेज था उनको बताया कि भाई मैंने भी लगा लिया है और अब आप भी लगा सकते हैं, और जो भी वैक्सीन के फायदे वो बताए। और फिर मेजोरिटी जो गांव के मोस्ट ऑफ लोगों ने वैक्सीन लगवाया और उसके वैक्सीन के साइड में आ गए। तो इस तरीके से जहां पर भी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमें भी बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो, या तो ऐसे जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें से भी मैं भी आपको बता सकूंगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम इस तरह से उसे किया था या कर सकते हैं। बाकी आप लोग एक काम और कर सकते हैं, वैक्सीन अवेयरनेस के लिए 1-1 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं जो आप अपने सोशल मीडिया से शेयर करें। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। हाँ मैडम, जी। सर वैक्सीन के लिए सर मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे जस्ट लाइक हमारे एक जो वॉलंटियर्स है, जो भी हमारी टीम है, हाँ, जिसमें हाँ। एक मेंबर जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स, अगर हम ये कर लें, हम लोग एक ठान लें कि हमारी एक कॉलोनी जिसमें हम रहते हैं या जिस भी हम गाँव में रहते हैं, जिस भी गली मोहल्ले को अगर हम अडॉप्ट करने की इसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो इसका वैक्सीनेशन हमें 100% करवाना है। अगर उसको हम अपनी जिम्मेदारी समझ लें, उसको हम अडॉप्ट कर लें, तो दैट्स वेरी गुड सर, कि वो बहुत अच्छा होगा। और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत इजी हो जाएगा और प्लस बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा सर उसके लिए। बिल्कुल हम ऐसा बिल्कुल करें तो मैडम, बहुत अच्छा रहेगा। हम कर सकते हैं मैडम। आप अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताइएगा, ये मॉडल भी हम अपना सकते हैं कि आप जहां पर रह रहे सिर्फ उस एरिया का आप देखें, तो भी ये काफी अच्छा काम हो सकता है। थैंक यू सर। जी मैडम, तो ये आप वीडियोस बना के फिर ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 112 नंबर का, तो उसमें आप फिर रखिएगा। जो भी अच्छे वीडियोस होंगे उसे हम MGNCRE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया है उसके प्लेटफॉर्म्स, तो वहां से भी उसे रखेंगे, उधर से भी शेयर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी वो कम से कम 1-1, 2-2 मिनट के छोटे वीडियो बनाए, और ये जो हमें प्रचार प्रसार करना है प्रिकॉशंस का और एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, वो आप करें। आप उसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बोलिए ताकि लोग उसे अच्छे से कनेक्ट कर सके। और जो भी आपका बोलने का मटेरियल होगा वो यूट्यूब पे और वहाँ हर जगह पड़ा ही है, वो ज्ञान तो सब जगह है ही। आप हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट देख लीजिए या उसके भी यूट्यूब चैनल्स में से वो जान सकते हैं। बाकी कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ आपकी तरफ से हो तो आप मुझे बताइए। सर स्टूडेंट्स की ही तरफ से मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो 112 ग्रुप को जब बच्चे ज्वाइन करेंगे तो हाँ, उसका क्या बेनिफिट होगा? उसमें हम, अगर मैंने कुछ किया है तो मैं डालूंगा तो दूसरे को पता चलेगा कि नहीं इधर ये काम हो रहा है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो देख देख कर भी काम करना शुरू करे। और या फिर किसी को अगर ये प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पर वो रख सकते हैं। अभी हमारा एक अहमदाबाद का ग्रुप है, तो उधर एक प्रॉब्लम आई थी कि भाई ये जो वॉक इन वैक्सीनेशन है, एक विलेज था वहाँ, अभी तो वो चालू हो गया ना वॉक इन वैक्सीनेशन की, हमें रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाते हैं। तो उस विलेज में एक वीक में 2 या 3 बार वैक्सीन का वो आते हैं डोजेस, 150 या 200। तो ऐसा होता था कि लोग बाहर से वैक्सीन लेने आ जाते थे, तो ये उसका प्रॉब्लम था। तो फिर हमने उसे कुछ यूज सोल्व किया
मैंने कहा वहाँ 2-3 वॉलंटियर्स थे, तो वो लोगों ने जो मेडिकल ऑफिसर था उनको मिले, और फिर ये जो उसका सेल बना हुआ था तो उसका लेटर लेके वो TDO होता है हमारे यहाँ, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनके पास गए और फिर उन दोनों को समझा दिया कि भाई हम हमारे गांव से जो भी लिस्ट देंगे आप उतनों को ही वैक्सीन देंगे। तो उसने गांव में ही पूरा एक लिस्ट बना लिया सीरियल नंबर वाइज 1 to 400 कि भाई ये 400 लोग हैं जो वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो अभी अगर वैक्सीन आएगी तो अगर 50 डोज आए या 100 डोज आए तो उसी लिस्ट में से फर्स्ट 50 या फर्स्ट 100 उतने को ही वैक्सीन मिलेगी, इसके अलावा किसी और को वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो ग्रुप का मैडम बस यही बेनिफिट है कि जो भी प्रॉब्लम्स उस एरिया के हो वो हम जाने और उसे सोल्व करने की कोशिश करें। इस एक्टिविटी में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनकी Yes. उनको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुछ एक्नॉलेज करने वाली है कि बच्चों का इनिशिएटिव है, ऐसा कुछ है? जी मैडम, अभी मैं उसकी बात कर ही रहा था। मैंने इसमें MGNCRE में कहा था कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से बच्चों को भी सर्टिफिकेट दे। इंस्टीट्यूशन को तो मिलने वाला है, पर बच्चों को भी मैं ट्राई कर ही रहा हूँ कि उनको भी मिला जाए कि जो जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हें, तो वो भी मैं आपको कहता हूँ कि वो भी हो सकता है। तो ये तो बड़ी Yes. अच्छी बात है कि आप एक स्वैच्छिक समाज सेवा का काम जो कि बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके एक पार्ट बने और एक बहुत ही जी। रेप्यूटेड बड़ी टीम का पार्ट बने। तो मेरे ख्याल से सभी फैकल्टी मेंबर्स से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें टू जॉइन दिस ग्रुप, और ये फॉर्म जो है उस उन्हें फॉरवर्ड करें। और हम सभी एक्नॉलेज करेंगे कि SGVU में हमने कोविड सेल एस्टेब्लिश की है, जो कि जिसमें हमें कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, ये वर्चुअली डिजिटली अवेलेबल है। हम जहां हैं वहीं से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल। उसमें ज्वाइन रहेंगे तो हम ये बात भी कर सकते हैं कि हमें ये तकलीफ है या किसी को भी कोई तकलीफ है तो हम उसके काम आ सकते हैं। हाँ, और जो फैकल्टीज है वो उस ग्रुप के या टीम के लीडर बन सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा कि स्टूडेंट्स उसके ही टीचर से, सर से ये सब शेयर करें। और उसके साथ हम ये, जैसे अभी राशिद सर ने शेयर किया, क्योंकि वो तो काफी बड़े काम करते हैं, उनकी जी। एबल गाइडेंस में हम हाँ। सारे लोग इकट्ठा होके ये काम कर सकते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि SGVU जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका कंट्रीब्यूशन, उसके हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन इस बीमारी को हटाने के लिए या किसी भी बीमार व्यक्ति के मदद के लिए क्या रहा है। तो हम जब शायद ये बीमारी सबके एफर्ट से खत्म हो जाएगी, बट व्हेन वी लुक बैक तो हमें सच में बहुत हैप्पी मोमेंट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी ज्ञान विहार के किसी स्टूडेंट ने मदद की होगी, और वो जरूर बहुत आपको सच में बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और ये बहुत काम आता है, जो मैंने अपनी भी लाइफ में बहुत अनुभव किया है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, इट रियली कम्स बैक टू यू। तो इट्स ऑल योर गुड कर्मास दैट हेल्प यू। बिल्कुल। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट्स कि इसका हिस्सा बने। और विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यहाँ ये वेबिनार की है और हमसे जुड़े रहें, हमें और गाइड करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर जितने भी उपस्थित मेंबर्स हैं उन सभी का, टीम SGVU का, और साथ में हमारे लीडर डॉक्टर राशिद हुसैन सर का, जो खुद अपने आप में काफी बहुत ज्यादा सेवा कार्य में जुटे रहते हैं हमेशा ही। और उनके एबल गाइडेंस में जरूर हम लोग इस सेल को बनाएंगे और हमारे काफी बच्चे जुड़ेंगे, और आप देखेंगे कि ज्ञान विहार से आपको काफी सारे बच्चे मदद के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच विशाल जी। अगर आप कुछ सर आप कुछ ऐड करना चाहें? यस सर। नहीं विशाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम हो सकता है कि बच्चे अभी फर्स्ट इसमें मीट में नहीं आपसे पूरी तरह खुल पाए, तो हम लोग सारे फैकल्टीज को रिक्वेस्ट करेंगे और सारे प्रिंसिपल्स को भी, तो वो स्टूडेंट से फर्दर इस पे एक्शन प्लान एक डेवलप करें, और उस एक्शन प्लान को हम लोग आपके पास भी जल्द से जल्द शेयर करें कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सिक्यूट दिस, कि अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट इज दिस, मतलब एक ब्लूप्रिंट हर काम का बनना चाहिए। और ये जो 5 टीम है, 5 टीम में
कौन कौन बच्चे किस किस टीम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हाँ। तो अभी हम लोग एक टाइमलाइन बना लेंगे कि इतने टाइम में हम ये फॉर्म हमारे पास आ जाए, उसके बाद फिर प्लानिंग हो जाए। इफ वी रिक्वायर्ड देन हम लोग, हो सकता है मैं भी इनको गाइड करूंगा और आपका भी सेशन हम लोग और भी दोबारा कराएंगे। डेफिनेटली हम लोग जरूर इस पे काम करेंगे। जैसे अल्टीमेटली टू सर्व द सोसाइटी या टू सर्व द नेशन, अल्टीमेटली आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है जो आपको मतलब सबसे बड़ा कर्म है ये, इस चीज को सोचना चाहिए। तो विशाल जी, दिस इज रियली ग्रेट टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन और बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और हम लोग आगे भी आपके साथ काम करते रहेंगे। यूनिवर्सिटी आपको फुल सपोर्ट करेगी, बच्चे आपको फुल सपोर्ट करेंगे, मेरी टीम करेगी फुल, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सर, एंड we'll be in touch through further communication। हम सर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कॉल से जुड़े ही रहेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी। और ये एक टीम फॉर्मेशन होने के बाद आप ये सभी जो कलेक्टर्स, पुलिस, रेवेन्यू सब मदद करेंगे, उसके लेटर्स भी मेरे पास है, तो आप उनको भी बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये इस तरह का सेल खुला चाह रहा है, खुल गया है। तो वो सब भी पूरा सपोर्ट सिस्टम में अपनी ओर से आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको कभी भी कुछ भी कामकाज हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर जी। और फिर आप जी, आपका ये सेल का कुछ इनॉग्रेशन या ऐसा कुछ भी रखना हो तो मैं चेयरमैन सर को भी बताऊंगा कि वो हाजिरी दे, ऐसा कुछ वर्चुअल अगर आप इस रुचि मैम, तो बेहतर है कि एक आपको लगता है वर्चुअली एक सेल का इनॉग्रेशन कराएं, और उसमें हम समझते हैं हम लोग अपने मैनेजमेंट के भी, हायर मैनेजमेंट को भी करें और सर के डिपार्टमेंट के भी चेयरमैन सर को इन्वॉल्व करें हम लोग। बड़ी जल्दी हम लोग मेंबर्स बना लें, उसके बाद बड़ी जल्दी हम इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे सर। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, राशिद सर धन्यवाद। Thank you for joining this meeting. Okay, thank you. We'll meet till we meet again. Bye bye. Have a good day. Okay, goodbye. धन्यवाद।